Hello students, today I am going to explain chapter number 5, separation of substances. If we have a mixture of two or more things, then what methods we are going to use for this separation, that we will see in this chapter. The first thing is that why do we need to separate the substances? What is the need to separate the substances? See, if we have a mixture of stone and rice, when you prepare rice, of course you will separate the stones, but why do you need to separate the stones? What is the purpose? To remove the impurities or harmful components, because stone is an impurity, it is harmful. If you will cook rice with stones, it is going to harm your body. So what is the purpose? Because we are going to remove the impurities, because stone is an impurity and it is harmful component. So in this case, the purpose is to remove the harmful and impurities. Second is churning milk to obtain butter. What is the purpose in that case? Both milk and butter that we obtain in this process, उन दोनों में से कुछ भी impurity नहीं है, ना ही मिल्क और ना बटर इम्प्योरिटी है. सो इन दिस केस ये फर्स्ट वाला पर्पस नहीं हो सकता, बिकॉज इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट नहीं है. इस बार हमारे पास मिल्क और बटर में से दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स हैं. सो इन दिस केस द पर्पस इज टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स, बिकॉज बोथ आर यूजफुल कंपोनेंट्स. तो इस केस में जो पर्पस है वो है वी आर सेपरेटिंग टू यूजफुल कंपोनेंट्स. Now third, if we have a mixture of tea, when you prepare tea, you use tea leaves. So last में आप tea leaves को separate करते हो, then you have your tea. Then what is the purpose in that case? In that case the purpose is to remove non-useful components, because जो हमने टी प्रिपेयर किया, जो टी लीव्स यूज़ किया था, अब उसको यूज़ करने के बाद इट इज़ नॉट यूज़फुल. हम उसको यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद उसका कोई भी यूज़ नहीं है. तो इन दिस केस द पर्पस इज़ टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. विच वन इज़ अ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट? टी लीव्स. अब जो है वो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट बन गया. तो इस तरीके से डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं दो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. Now we are going to see different methods that we can use for the separation. So the first method is hand picking. It can be used for separating slightly larger sized impurities like stone husk from wheat, rice or pulses. तो hand picking में आप लोग simply अपना hand यूज़ करके दो मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जस्ट बाय हैंड पिकिंग. बट इन दिस केस द इम्प्योरिटी शुड बी ऑफ स्लाइटली लार्जर साइज, लाइक स्टोन इन द राइस. राइस में जो स्टोन्स होते हैं वी कैन ईजिली सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. बट अगर इम्प्योरिटीज़ बहुत स्मॉल है, सपोज राइस में डस्ट भी होता है, डस्ट पार्टिकल ऑल्सो, कैन यू रिमूव द डस्ट पार्टिकल बाय हैंड पिकिंग? No, obviously we cannot remove. So in this case, in case of hand picking, जो impurity है उसका size should be slightly larger. बहुत छोटा size है, then we will not be able to separate it by hand picking. Second method of separation is threshing. What is threshing? It is used to separate grain from stalks. अगर आपने वीट के फील्ड्स में देखा होगा तो फार्मर्स दे यूज़ थ्रेशिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स. जो स्टॉक होता है उससे हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग थ्रेशिंग. द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. इस प्रोसेस में क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन, जो स्टॉक होता है उसको बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पटक के मारते हैं.
तो इससे क्या होगा, जब वो बहुत फोर्सफुली ज़मीन के साथ हिट होता है तो उसके जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपने आप ही। तो स्टॉक्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें नीचे ज़मीन पर मारना है, इससे ग्रेन्स अपने आप ही उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। ये फार्मर्स यूज़ करते हैं ये प्रोसेस को इन द फील्ड्स to separate grain from the stalks. Now third method of separation is winnowing. What is winnowing? It is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. ये सब भी आपने घर पर देखा होगा। See, winnowing में क्या होता है, if we have two components, one should be lighter in weight and one should be heavier in weight. दोनों का जो वेट है वो डिफरेंट होना चाहिए, एक लाइट होना चाहिए और एक हैवी होना चाहिए। इन दैट केस ओनली वी कैन यूज़ विनोइंग। इस केस में वी यूज़ द डायरेक्शन ऑफ विंड और एयर और विंड का डायरेक्शन यूज़ करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में एयर जा रही है, हम जब इस मिक्सचर को नीचे गिराएंगे तो जो हैवी वाला कंपोनेंट है वो एयर के साथ उड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा हैवी है। तो हैवी वाला कंपोनेंट नीचे ही गिर जाएगा और उसका हीप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हैवी वाला कंपोनेंट जो है वो हवा के साथ उड़ के नहीं गया और उसका हीप क्रिएट हो गया। बट जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो विंड की डायरेक्शन में एयर की डायरेक्शन के साथ ही उड़ के चले जाएंगे और थोड़ा दूर जाके गिरेंगे। सो दिस मेथड वी कैन यूज़ फॉर द सेपरेशन। विनोइंग में हमें एयर की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन, एंड it can be used in that case only when one component is lighter and one component is heavier. Now the next method of separation is sieving. In this method we use sieve for the separation. What is sieve? जिसको आप छलनी बोलते हो। With the help of sieve we are going to separate two components. Sieving is used when components of a mixture have different sizes. So when can you use this method? When the two components they have different sizes. दोनों का जो size है वो different होना चाहिए. One should be smaller and other should be larger. In that case only you can use sieving. What happens? Sieving allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while bigger impurities remain on the sieve. तो जो sieve हमने लिया है, जो छलनी हमें लिया है, उसके जो holes हैं उससे जो smaller वाला particle है वो तो नीचे चला जाएगा और जो larger particles होते हैं वो sieve के ऊपर ही रह जाते हैं, the bigger impurities. तो इस तरीके से दोनों separate हो जाते हैं। जो smaller particles हैं वो सीव से निकल जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सीविंग व्हेन दे हैव डिफरेंट साइजेस। इन दैट केस वी कैन यूज़ सीविंग। आपने घर में भी देखा होगा दिस मेथड। So many times we use this. टी लीव्स को भी टी से सेपरेट करने के लिए हम छलनी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जब दोनों का साइज़ डिफरेंट है उस केस में ये प्रोसेस यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सी, जो राइस में जो डर्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, हाउ विल यू सेपरेटेड? क्या हैंड पिकिंग से वो सेपरेट कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या छलनी से छान देंगे तो राइस और डस्ट अलग हो जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन what you will do in that case? So there are some other methods also. First is sedimentation. In this method what we do, we add water to the mixture. When heavier component in a mixture settles after water is added,
इन दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू ऐड टू द मिक्सचर. जो भी हमारे पास मिक्सचर अवेलेबल है उसमें वाटर ऐड कर देंगे. व्हाट विल हैपन आफ्टर एडिंग द वाटर? द हैवियर कॉम्पोनेंट विल सेटल डाउन एट द बॉटम. जो हैवी वाला कॉम्पोनेंट है वो बॉटम में चला जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. नाउ जो हैवी वाला कॉम्पोनेंट है वो तो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है. देन व्हाट विल वी डू? वी आर गोइंग टू रिमूव द वाटर. हम जो हमारा वेसल है उसको थोड़ा टिल्ट करके वाटर को उस वेसल से हम निकाल देंगे. देन द टू वाटर along with the dust is removed is called decantation. This process is called decantation. जब वाटर को हम उस मिक्सचर से सेपरेट कर देते हैं तो उसको डिकेंटेशन बोलते हैं. अब इससे क्या होगा? सपोज वी हैव राइस और उसमें थोड़े से डर्ट पार्टिकल है और अब हमें उसको रिमूव करना है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू? हम वाटर ऐड कर देंगे. अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ ही मिक्स हो जाएंगे और जो राइस है इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम. तो जब हम वाटर को सेपरेट करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उसके साथ ही वाटर के साथ ही रिमूव हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. एंड वन मोर थिंग इज फिल्ट्रेशन. अगर अभी भी सपोज वी हैव ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोसेस for the mixture of sand and water. After some time, sand will settle down at the bottom. Then this process is called sedimentation. And after settling down, what we are going to do? We are going to remove the water. But water is still not clean. Sand is separated, but some fine particles of sand are still mixed with the water. The water we get is not very clean. Water अभी भी बिल्कुल क्लीन नहीं है, उसमें थोड़ा सा सैंड अभी भी मिक्स है. In that case what will you do? We can filter it. Using a filter paper we can filter it. So that process is called filtration. Next process is called evaporation. See, to understand this, water can be present in three forms: solid, liquid and water vapors. In these three forms water can be present. When you heat solid, when it is present in the solid form, it means ice. When you heat ice, what will you get? You will get water in liquid form. जब आइस को हीट करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा और जब वाटर को हीट करेंगे देन वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से हीटिंग पे वाटर का स्टेट चेंज होता है. व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. किस तरीके से कन्वर्जन होगा? अपॉन हीटिंग. हीटिंग पे जो वाटर है वो उसके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. द कन्वर्जन ऑफ वाटर in to its vapors, and this happens on heating. So that process is called evaporation. Then next is condensation. इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन. आइस को हीट करने पे हमें वाटर मिला था, वाटर को हीट करने पे वाटर वेपर्स. इसका रिवर्स करेंगे. वाटर वेपर्स को अगर हम कूल डाउन करते हैं देन वी गेट वाटर, और वाटर को कूल डाउन करते हैं देन वी गेट आइस. कंडेंसेशन इवेपोरेशन का ही रिवर्स प्रोसेस है. सो व्हाट इज कंडेंसेशन? द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर. जब वाटर वेपर्स को कूल डाउन करके वी गेट वाटर. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो इस तरीके से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन यूज़ करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज इफ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाउ विल यू सेपरेट इट? सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर अगर हमें सेपरेट करना है देन विच प्रोसेस वी आर गोइंग टू यूज़? वी आर गोइंग टू यूज़ इवेपोरेशन.
हम उस मिक्सचर को, जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, उसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें हमारे वेसल में क्या मिला, वेसल में लास्ट में सिर्फ सोल्ट ही रह जाएगा और वाटर तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग इवेपोरेशन। So these were some of the methods that can be used for separation of two or more substances. That's all for today. Stay home, stay safe. Goodbye.